कुछ नहीं होता. So I wanted to go and show you कि Sorry, Brinda, just a minute. हाँ. I think the Nidhi Varsne, just you have to keep yourself mute. You are always you're doing unmuted yourself. Please keep it. Yes. Okay. So I wanted to show you कि बे एरिया में एक तो ये बहुत बड़ा फेमस फॉल्ट है जो कैलिफोर्निया टॉप से बॉटम तक जाता है. उसका नाम है सैन एंड्रियास फॉल्ट. इट इज कॉल्ड सैन एंड्रियास फॉल्ट and it goes all along the coast and then a little bit inland of California from north to south. This is the most famous fault, the 1906 earthquake of San Francisco that pretty much destroyed whole San Francisco, as well as the 1989 earthquake of San Francisco. Also, they both happened on this fault, same fault. So most people, when you ask earthquake in California, they say San Andreas fault. A movie bhi aaya tha bada sa. But we forget that this is not the only fault, especially in Bay Area. तो my God, भरा पड़ा है fault से. So this is the San Andreas fault, जो कि passes through San Francisco proper. Palo Alto, San Mateo, San Jose, सबको इसका effect आएगा. But we are surrounded by two faults. तो ये डैनवेल हो गया, तो यहाँ पे सैन रमोन है. तो हमारे इस साइड भी एक फॉल्ट है और हमारे इस साइड भी एक फॉल्ट है. So let me show you. So this is 580 and this is 680. This yellow freeway is 680. ये रहा सैन रमोन. So आप फ्रीवे को ही पकड़ लो, that is a fault line pretty much, right? सीधा फ्रीमॉन्ट के नीचे से लेके एलमो तक का ये एक फॉल्ट है. इसको बोलते हैं कैलावेरिस फॉल्ट. So this actually passes through bridges in San Ramon. It passes under bridges, right? So this is one fault that is on the east of us, right? Norris Canyon यहीं पे कहीं है, right here. Actually, नहीं, यहाँ कहीं है. This is the exit of Crow Canyon and it's right here. Norris Canyon is right here, okay? The second fault surrounding us, so think of this, we are right here, Norris Canyon is around here, okay? So, and that fault, Calaveras fault is around here. And this is the Hayward fault. And this is the one that we really, really need to worry about. Because on Calaveras fault, छोटे मोटे earthquake आते रहते हैं, बहुत सारे आते रहते हैं, लेकिन छोटे छोटे आते रहते हैं. Hayward fault, they are predicting that the next big earthquake is not going to be on San Andreas fault. It is going to be on this Hayward fault. And the problem with that is that millions of people live on this fault. Up Berkeley, Richmond, Berkeley, Oakland, San Leandro, Hayward, Fremont, Milpitas, sub is fault pe hai, right? So it's a very dense population area. और अगर हेवर्ड फॉल्ट में अर्थक्वेक आया तो हमें बिल्कुल उसका असर होगा. तो we definitely need to get prepared for this earthquake. Now, the first thing you have to do to get prepared is create an evacuation plan. तो evacuation plan मतलब कि उससे आप उस टाइम पे आप सोच नहीं सकते. उस टाइम पे इतना कुछ हिलेगा या डिस्ट्रक्शन होगा तो you're not thinking. तो अगर पहले से प्लान किया हुआ है तो it helps to keep everything in control, right? So the first thing is you have to think about your home and you have to think कि हम फ्लड जोन में है, हम फायर जोन में है, हमें उस तरह से तैयारी करनी है, राइट? सेकंड, आप एग्जिट्स ढूंढ लो. आपके घर में कितने एग्जिट्स है और कहाँ आपके रूम से सबसे पास का एग्जिट कौन सा वाला है घर में. तो आप उसको हर एक रूम से आप यू हैव टू प्लान इट कि हर एक रूम से एग्जिट कहाँ पे है. आपको ये भी प्लान करना है कि अगर आप सेकंड फ्लोर पे है तो अगर आप के रूम के बाहर आग लग गई या कुछ हो गया, अगर आप नहीं निकल पाए तो आप कैसे एग्जिट करेंगे. तो उसका भी सोचना चाहिए. Not necessarily earthquake is something where you might be able to get away. Fire में ये ज़्यादा होता है, but definitely something to think about. Multiple ways to exit your home. That is your plan. That should be your plan. हम लोग emergency kit की बात करेंगे. Everyone, this is a big one.
everybody should have an emergency kit in a house. And we're going to talk about that. And we're going to talk about where that emergency kit should be in your house also. This is where most people don't even know where their utility switch off valves are. So you should definitely know where all your utility switch off valves are, right? Electricity का breakers कहाँ है, gas का shut off कहाँ है, पानी का shut off कहाँ है, ये आपको पता होना चाहिए. And आपके indicate location of a family's emergency outdoor meeting place. जैसे आपको पता नहीं है earthquake कितने बजे आने वाला है, कोई काम पे गया है, कोई बच्चा स्कूल में गया है, कोई घर पे है, तो you have to decide कि कोई अगर हम सब अलग अलग जगह पे है, where do we all meet? तो एक लोकेशन तय करना चाहिए कि अगर हम लोग अलग अलग है, then we meet at this place, right? And this is very important. आपका कैलिफोर्निया से बाहर कोई एक कांटेक्ट होना चाहिए जो कि आपका इमरजेंसी कांटेक्ट है, जिसको आप हर एक फैमिली, अगर सब घर पे नहीं है तो हर एक बंदा उसको कांटेक्ट करेगा. क्यों? क्योंकि chances are that you are not going to be able to contact somebody in your family, especially if they are in danger. This person is your out of state contact. हर एक बंदा उसको बोलेगा कि मैं ओके हूं, मैं ओके हूं, मैं ओके हूं. Then that person knows ki who is there, who is not there, who needs to be looked for, all that. So that person becomes the central point for everybody to contact, right? So ये तो थोड़ा basics हो गया plan बनाने का. Now the most important thing in your plan should be your kit. So you have to make a kit. Or most people ना they know that they have to make a kit, लेकिन बनी नहीं होती है घर में. क्यों? क्योंकि they are like कर लेंगे. It will take you 2 hours. You have to go to a grocery store and you have to go to Home Depot. And you will probably end up finding all of this in those two places. And probably it'll take 2 hours of your day. आप एक weekend तय करो कि ये करना है और करो उसको. Because earthquake कह के नहीं आने वाला है. Right? The most important thing is water. आप खाने के बगैर 3 week जी सकते हो. No problem. पानी के बगैर बंदा 3 दिन जी सकता है. 3 days. Right? And why is water so important? पानी के पाइप्स टूट जाते हैं. जब अर्थ हिलता है, पाइप इज अ रिजिड थिंग, अगर उसको ऐसे ऐसे हिलाओगे तो वो तो टूट जाएगा. तो पानी के पाइप्स टूटेंगे, गैस के पाइप टूटेंगे, राइट? सो पानी बंद हो जाएगा आपका. तो पीने का पानी और टॉयलेट फ्लश करने का पानी होना चाहिए. तो मिनिमम आपके घर में अगर 4 लोग हैं तो आपके पास 12 गैलन पानी होना चाहिए. 3 गैलन्स पर पर्सन मिनिमम. अगर 4 कर लिया तो अच्छा है, 5 कर लिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन 3 तो होना चाहिए. 3 दिन का खाना होना चाहिए. आई थिंक मोस्ट इंडियन लोगों के पास इतना खाना तो हो ही रहता है, तो उसका मुझे ज्यादा वो नहीं रहता है. बैटरी पावर्ड रेडियो, क्योंकि आपका शायद टीवी पीवी कुछ नहीं चलने वाला, तो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए गवर्नमेंट से. तो ये स्पेशल रेडियोज होते हैं जो आपको हैंड क्रैंक करने से चलते हैं. एक्स्ट्रा सेलफोन बैटरी भी चाहिए आपको, क्योंकि दैट बिकम्स योर कम्युनिकेशन टूल. तो सेलफोन का अलग सा बैटरी चार्जर होना चाहिए. फ्लैश लाइट भी होनी चाहिए. फर्स्ट एड किट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप कहीं नहीं जा सकते हॉस्पिटल तक या कुछ छोटी मोटी इंजरी है, आप घर में उसको फिक्स कर सकते हैं. विसल होना जरूरी है, बट टाइम पे काम ज्यादा नहीं आता, क्योंकि आप विसल लेके घूम तो नहीं रहे होते हर जगह. तो विसल तब काम आता है कि आपको अगर बाहर किसी को सिग्नल करना है कि हम घर में फंस गए, तो आप विसल मार सकते हैं. डस्ट मास्क, अब तो सबके घर मास्क होने लगे, तो अच्छी बात है, थोड़े आप इमरजेंसी किट में डाल दो. और डक्ट टेप हर चीज को फिक्स करने में काम आता है, तो डक्ट टेप होना बहुत जरूरी है. पैसा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एटीएम काम करना बंद, बैंक सारे एटीएम बंद कर देंगे, क्रेडिट कार्ड मशीन्स चलना बंद कर देंगे स्टोर्स में, तो कैश बिकम्स किंग. तो थोड़ा बहुत कैश होना जरूरी होता है. गैसोलीन, ये कोई नहीं बोलता, कोई इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस किट ये नहीं बोलता है कि गैसोलीन होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल होना चाहिए.
आप कोई भी इमरजेंसी देखो, गैस पंप्स बंद हो जाएंगे, आप गैस कहां से लाओगे? राइट? आपके गाड़ी सब होंगे लेकिन गाड़ी नहीं चल सकते, तो गैस का होना बहुत जरूरी होता है। 3 गैलन या 5 गैलन का या 1 गैलन का कंटेनर आता है होम डिपो में, स्पेशल कंटेनर्स होते हैं उसके लिए, उसी में गैस भरना होता है, वरना वो सेफ नहीं होता है। सो प्लीज, वो ज्यादा नहीं होते, छोटा वाला $4 या $5 का आता है, बड़ा वाला $15-16 का आता है, बट इट इज वर्थ हैविंग दैट लिटिल बिट ऑफ गैस इन द हाउस। एंड प्लायर्स या रेंच, ये सारे वाल्व्स जो आपको शट ऑफ करने होते हैं ना, उसके लिए ये प्लायर्स या रेंच होते हैं। ये सब ऑप्शनल है, लेकिन मेरे हिसाब से जरूरी है। अगर आप कैन खोलना चाहे तो कैन ओपनर चाहिए, मैनुअल, इलेक्ट्रिक नहीं। आपके जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन है ना, क्योंकि अर्थक्वेक में क्या होगा, सब कुछ ज्यादा हिलेगा, आप एक बार घर से बाहर निकल गए, आप घर में शायद वापस ना पहुंच पाओ, तो आपके मेडिसिन, ग्लासेस, ये वगैरह अगर घर में रह गए, वो भरा पड़ा है लेकिन आपके काम का नहीं है, तो फिर आपको क्या होगा? तो अगर थोड़ा सा आप इसमें डाल दो, राइट, आपकी किट में, तो यू हैव एन इमरजेंसी सप्लाई। बच्चों या पेट है तो इसके हिसाब से चीजें होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स, कॉपीज रखने चाहिए, इंश्योरेंस पॉलिसी के, क्योंकि कभी कभी ना गैस का लीक हो जाता है और आग लग जाती है, तो अगर आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी के कॉपीज है, पेपर कॉपी हो या इलेक्ट्रॉनिक कॉपी हो थंब ड्राइव में या कुछ, तो सो ये सब कॉपीज, ब्लैंकेट होने चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये पहला वाला लिस्ट है, ये तो होना ही होना चाहिए। ये बाकी सब हो तो अच्छी बात है। अगर अर्थक्वेक आए तो उस समय क्या करना चाहिए? अगर आप कार में हो तो आप सेफली हो सके तो पुल ओवर कर लो और स्टॉप कर दो आपकी गाड़ी, और शेकिंग स्टॉप होने के बाद ही आप चालू करो उसको। और ब्रिजेस और वो रैंप होते हैं ना, ओवरहेड रैंप, उसके नीचे से केयरफुली जाओ क्योंकि वो गिर सकते हैं। फ्लाईओवर्स, आई एम सॉरी, फ्लाईओवर, हाँ, फ्लाईओवर्स। पावर लाइंस अगर गिरा है आपके व्हीकल में तो दरवाजा मत खोलो, यू आर सेफ इनसाइड, लेकिन दरवाजा मत खोलो, बाहर मत निकलो। 911 डायल करो, कोई आपको आके निकालेगा वो पावर लाइन को स्विच ऑफ करके। अगर आप बेड में हैं तो दैट इज अ सेफ प्लेस। बेड में अपना तकिया, बिकॉज योर हेड एंड योर नेक यू हैव टू प्रोटेक्ट, तो उसके ऊपर पिलो करो, फेस नीचे करो, क्योंकि यहाँ पे आपके बैक में ना वाइटल ऑर्गन्स नहीं है, आपके फ्रंट में वाइटल ऑर्गन्स है। सो अगर आप बैक टर्न कर देते हो, फेस डाउन हो जाते हो, तो ये यू आर प्रोटेक्टिंग योर वाइटल ऑर्गन्स, राइट? सो फेस डाउन करके पिलो हेड और नेक पे डाल दो बस। अगर आप बाहर हो तो बाहर ही रहो, घर में मत आओ, राइट? बिल्डिंग से दूर हो जाओ, ट्रीज से दूर हो जाओ। अगर आप घर में हो तो फाइंड अ सेफ स्पेस, टेबल के नीचे, बेड के नीचे, किसी भी सॉलिड चीज के नीचे। अगर कुछ ना मिला ना, चेयर के नीचे घुस जाओ, लेकिन किसी चीज के नीचे घुस जाओ, क्योंकि मोस्ट पीपल ना अर्थक्वेक से नहीं उनको इंजरी होती है, अर्थक्वेक तो हिलता है, सारे गिरती हुई चीजों से उनको इंजरी होती है। तो ट्राई टू अवॉइड दैट, राइट? एंड द रूल इज ड्रॉप और लॉक। अगर आप ड्रॉप कर सकते हो तो ड्रॉप करो, वरना आपके पास व्हील चेयर है या वॉकर है तो यू लॉक द व्हील्स, कवर, डक करो और कवर करो। अपने हेड और नेक को कवर करना चाहिए अपने आर्म से, तो अपने आर्म ना नेक के पीछे लॉक करो और ऐसे नीचे करके हो जाओ, और जो भी डेस्क या वगैरह है उसको होल्ड ऑन करो। सो ड्रॉप, नीचे कवर, उस हेड और नेक को कवर करके इसके टेबल या किसी के नीचे घुस जाओ, और टेबल को पकड़ के रखो, क्योंकि टेबल समटाइम्स वो हिल जाएगा, इतना शेकिंग होता है कि टेबल हिल जाएगा। तो आप टेबल से आप भी हिलो। अब आपके पास केन है, सेम थिंग, अब केन ड्रॉप कर दो, हैंड्स और नीज पे चले जाओ, क्रॉल करके टेबल या किसी चीज के नीचे चले जाओ। अगर आप वॉकर में है तो वॉकर सीटिंग वाला है तो उसमें बैठ जाओ और अगेन अपना हेड और नेक कवर कर लो। व्हील चेयर में है तो भी व्हील लॉक कर दो, बैठे रहो और आपके वाइटल ऑर्गन्स प्रोटेक्ट कर लो। सो आगे जो आपका आगे का पोर्शन है वो आप जब लीन फॉरवर्ड करते हो वो आप प्रोटेक्ट कर रहे हो। एंड देन आफ्टर एन अर्थक्वेक एक्सपेक्ट आफ्टर शॉक्स। एक अर्थक्वेक कभी नहीं आता, उसके बाद ना आफ्टर शॉक आते रहते हैं, 5, 6, 7, 8 आ जाते हैं। तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो, हर बार ड्रॉप, कवर एंड होल्ड, है ना?
अगर डैमेज बिल्डिंग हुई है, सीधा बाहर चले जाओ एंड बिल्डिंग से दूर चले जाओ। अगर आप अंदर ट्रैप हो गए हो तो आप किसी को टेक्स्ट मैसेज भेजो, आपका जो आउट ऑफ स्टेट कॉन्टेक्ट है उसको टेक्स्ट मैसेज भेजो कि मैं बिल्डिंग में इस रूम में ट्रैप्ड हूं, या फिर आपके पास फोन नहीं है तो आप किसी चीज से आवाज करो, बोलो मत, क्योंकि आप बोलोगे तो आप डस्ट स्वॉलो करोगे, तो बने तो बोलो मत, आप आवाज करो बस, है ना, और काम रहो, क्योंकि काम रहोगे तो आप ऑक्सीजन कम यूज करोगे। नोवेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर चीज बंद करनी आनी चाहिए, गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर। सो आप अभी आप जाके सारे वाल्व्स देख लो कहाँ है और उसको कैसे बंद करना है। और अगर आपको गैस बंद करना हुआ, तो आपको स्मेल आ रही है गैस की, तो आप जाके गैस बंद करोगे। अगर वो बंद किया तो फिर आप वापस उसको चालू मत करो, यूटिलिटी पीजी&ई को बुलाओ, वो आपका गैस बैक चालू करेंगे, आप मत करो प्लीज। एंड जो सारे फैमिली मेंबर को ये आना चाहिए, अडल्ट्स को, कि कैसे बंद करना है। एंड ये सारा इंफॉर्मेशन मैंने ये प्रेजेंटेशन अग्रवाल अंकल को भेज दिया है, ये सारा इंफॉर्मेशन इससे आया है, और ये एक प्रिंटेबल लिस्ट है, ये जो मैंने लिस्ट इंक्लूड किया था ना उसमें से, तो आप ये लिस्ट लेके जा सकते हैं कोई स्टोर में, और ये चेक ऑफ लिस्ट है, तो आप चेक ऑफ लिस्ट, ये मेन आइटम्स है और ये थोड़े एडिशनल आइटम्स है, इसमें गैसोलीन नहीं है तो वो आप ऐड कर दो, बट ये अच्छी लिस्ट है। सो ये सारे साइट्स है जो आपको ये जो इंफॉर्मेशन है वो दे देंगे, सारे बेसिक इंफॉर्मेशन। बट आई फील लाइक preparedness is very 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 important. Before you are prepared na, it is not, एक मिनट मैं इसको, I'm trying to shut it. Okay, ये भी बंद हो गया। Okay. There should be a stop screen share somewhere written. हाँ नहीं वही अंकल ना, यू आर शेयरिंग योर स्क्रीन, सो स्टॉप शेयर, हाँ बस हो गया। हाँ बस, सो एवरीबडी शुड एटलीस्ट दिस वीकेंड, क्योंकि आप अगर थोड़ा और बाद में करोगे तो आप भूल जाओगे, तो मेक अप गोल कि ये वीकेंड हमें ये लिस्ट लेके जाना है, और कैश, फूड, पानी, गैसोलीन और फर्स्ट एड किट, इतना तो जुगाड़ करना ही करना है, क्योंकि पानी के बगैर आप नहीं रह सकते। अगर आप नहीं है पानी घर में, तो पहली चीज ये करनी चाहिए कि अर्थक्वेक आए, आप अपना बाथटब भर लो पानी से, उसको बंद करो और उसको भर लो, या बाल्टी, जितने बर्तन है ना वो भर दो, क्योंकि पाइप में अभी भी पानी रहेगा, तो वो आपका टॉयलेट फ्लशिंग ये उसमें काम आ जाएगा, राइट। एक बार वहां मेन सिटी ने पानी बंद कर दिया, फिर 3-4 दिन तक पानी नहीं आएगा, तो बाथटब में पानी भर लो जितना भर सको, या फिर बड़े बड़े बर्तन में पानी भर लो जितना भर सको पाइप से, तो वो आपको 3-4 दिन एटलीस्ट पीने में वो काम नहीं आएगा, तो पीने के लिए आपको उसको बॉईल करना पड़ेगा, या फिर वन ऑफ दैट वेबसाइट लिंक्स, उसमें लिखा है कैसे ब्लीच से पानी साफ करते हैं, तो आपके पास अगर ब्लीच हो घर में तो आप उसको भी यूज करते हैं, बेस्ट बॉइलिंग, लेकिन अगर गैस नहीं चल रहा है तो बॉइलिंग इज आउट ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो। तो इसलिए ये 3 गैलन पर पर्सन अगर घर में आप रख लो तो दैट इज द बेस्ट, क्योंकि पानी के बिना नहीं जी सकते, खाने के बिना जी सकते, पानी के बिना नहीं जी सकते। तो क्वेश्चंस? वृंदा एक क्वेश्चन है, ये जो किट बना के इसको रखा कहाँ जाए घर पे? वेरी गुड, आई फॉरगॉट अबाउट दैट। सो अगर आपने घर में आपके किचन में रखा या आपके बेडरूम में रखा, वो तो यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि अगर सीलिंग गिर गया, विच इज वेरी पॉसिबल, या दरवाजा खिड़की टूट गए, कांच या आप अंदर नहीं जा पाओगे, तो ये तो एक तो गराज में रखो आप। कहाँ रखो? गराज में जो साइड का डोर होता है ना बाहर जाने का, उसके पास रखो आप, या तो फिर आपके बाहर एक कोई शेड वेड कुछ है उसमें रख लो आप। तो लेकिन उसके लिए मैं क्या करती हूँ,
कोई कंपनी में या लैब्स जो होते हैं ना, जो मेडिकल लैब्स वगैरह होते हैं, काइजर या कोई भी, वहां जाके आप बड़े बड़े स्टाइरोफोम के बॉक्सेस होते हैं उनके पास, तो मैं वो लेके आती हूँ, उसके अंदर रखती हूँ, तो फिर वो हीट कोल्ड उसका कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज को। तो या तो आप आउटडोर कोई शेड में रखो, या तो फिर आप गराज में आपके एग्जिट के पास रखो, ताकि आपके पास एक्सेस हो उसका, वरना फिर वो काम नहीं आएगा। गुड क्वेश्चन, थैंक यू। वृंदा, एक चीज मैं पूछता हूँ, आपने एक गुरु मंत्र मुझको बताया था कि अमेज़न पे साल में एक बार वो कुछ कुछ के बारे में कुछ बताओ। हाँ, सो अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस मंथ होता है, आई थिंक इट्स February, आई कुड बी रॉन्ग, क्योंकि मैंने सारा प्रिपेयर कर लिया है तो मैं भूल जाती हूँ अभी। तो वो 1 महीना होता है जब आप Amazon, कॉस्को, होम डिपो सारे सेल आते हैं, और उसमें आप फ्रीज ड्राइड फूड, सारे तैयार किट, उसमें पानी होता है, खाना होता है, फर्स्ट एड किट होता है, सब कुछ एक जगह पे, आपको सोचना नहीं है। फिर वो सेल में होता है तब, अभी भी मिलता है सब Amazon वगैरह में, लेकिन वो महीने में सारे सेल पे आ जाते हैं। तो वो कौन सा महीना होता है? फरवरी में आता है। Very. और वो कॉस्को हैज द बेस्ट किट, वो मैंने कॉस्को का लिया हुआ है। तो वो ना फ्रीज ड्राइड फूड होता है जिसका लाइफ होता है 20 इयर्स, शेल्फ लाइफ, वो 20 इयर्स तक खराब नहीं होता है। तो उसमें सिर्फ आपको पानी डालना होता है और वो खाना बन जाता है। वो वेजिटेरियन भी आता है, नॉन वेजिटेरियन भी आता है। तो इट इज वर्थ एन इन्वेस्टमेंट कि आप, वो थोड़ा पैसा लगता है, लेकिन फॉर इमरजेंसी किट दैट इज रेडी, यू डोंट हैव टू थिंक, इट्स वर्थ इट। I want to, Other I have thing one is, question. जान है तो जान है। Brenda ji, other thing is, we can keep all the nuts packet there too and replace them every year. We put all the nuts and cookies, some small packet enough for surviving for a day, 2 days, and then replace them every 6 months or something. In 6 that, months. that can work too. Yes, but इंडियंस में ना, हमारे घर में यूजुअली खाने की प्रॉब्लम नहीं होती है। नहीं, लेकिन दाल कुक कैसे करेंगे ना? If we have a dal, we cannot cook. So नहीं, uncooked food, which can. yes. कैंड सूप्स है, पीनट बटर है, वो तो Peanut खराब, butter, crackers, yes. क्रैकर्स है। नहीं, एक बात मुझे पूछना थी। हाँ। कि ये जो हमको कितने दिनों के बाद फिर इसको चेंज करना है? ये जो जाहिर है हमें तो नहीं पता ना कि परसों आ रहा है कि 2 साल के बाद अर्थक्वेक आ रहा है, कितने दिन तक हम इसको रखें? तो इसीलिए लोग अर्थक्वेक किट में पैसा इसलिए इन्वेस्ट करते कि वो 20 साल नहीं सोचना पड़ता, राइट? लेकिन अगर आप कर रहे हो तो मेरा रूल है कि मेरे बर्थडे पे, या किसी आप फैमिली, कोई भी फैमिली मेंबर का बर्थडे पिक कर लीजिए, उसके बर्थडे पे चेक होगा किट हर साल, तो आपको याद रहेगा कि ये तो अर्थक्वेक किट चेक करने का है, जो उसमें एक्सपायर हो गया है खाना वाना, वो सब निकालो और नया डालो। तो पानी होने के लिए भी तो चाहिए ना, पानी तो हम 1 साल पुराना नहीं। पानी भी एक्सपायर हो जाता है, तो वो भी आपको देखना। सो आप हर 1 साल में एक बार उसको चेक करो कि इसमें जो भी चेंज करना है आपको, वो चेंज कर लो। मैं तो क्या करती हूँ, 8 पैक गार्बेंजो बीन, 8 पैक ब्लैक बीन, जो भी कुछ लाती हूँ ना, तो मैं वो अर्थक्वेक किट वाला बाहर निकालती हूँ और नया पैक उसमें डाल देती हूँ, तो वो नया 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 होता रहता है। सो लेकिन आप एक आदमी का बर्थडे पकड़ लो आपके घर में, और उसके बर्थडे पे, या आप बोलो कि 1st of this month, या कोई भी एक डेट आपके फोन में डाल दो, वो अलार्म एवरी